مر گئے تو جاہلیت کی موت مرے. تو ہاتھ میں کڑا پہننا، ذرا لوگ گاڑی کو بھی تعویذ بناتے، مانو انہوں تو تعویذ پہنتے، ان کی 2 ویلر رہتی نہیں اسے بھی تعویذ پہناتے. ویسا نہیں کیا؟ ہاں شعیب گاڑی کو تعویذ ڈالتے، مانو ویسا لمبا ایسا لٹکتے رہتا 2 پتے کے ساتھ. ہاں تو یہ سب شرک ہے. ایسا کرنے والے جنتی عورتیں نہیں. جیسے کبھی کیا ہوتا بچے کو کیا ہوتا کبھی کبھار وہ ماتا آ جاتا، کیا بولتے اسے، چکن پاکس وہ ہوتا نہیں، وہ آ جاتا. آتے ہی کیا بولتے ہیں، مچھی کا سالہ پکا کو دھوبین کو دینا گئے تبھی چے جانگا گئے. ہاں گھر پہ نکلنا چاہیے، نیم کے پتے آپ کو سلانا. ہاں اس کے بعد اتنے دن تک پانی نہیں نہانا، وہ بچی کو باہر نکالنا، تبھی ماتا دیوی باہر نکل کو جائیں گے. تو وہ ایک وہ بیماری کو عقیدہ بنا لے کو، وہ مچھی کا سالہ بنا کو، دھوبن کو دے کو، اسے دے کو خیرات کرے تو جانگا. یہ سارے عقیدے ہیں جو شرک ہیں. یہ جنتی عورت ایسے سارے کام نہیں کر سکتی. جیسے بہت ساری عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کے گلوں میں کالے منکیا کا ہار ڈالتے، نہیں چھوٹے بچوں میں نہیں، بچے کو نظر لگتی ہے، نظر لگے تو دعا پڑھو. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. تو ہم لوگ بول رہے تھے کہ جنتی عورت پہلے کس سے بچے گی؟ شرک سے. نمبر 2 قسم بے ضرورت قسم نہیں کھائیں گے. کھانے کی ضرورت پڑے تو اللہ کی قسم ہی کھائیں گے. چلو مسجد میں جائیں گے، چلو سر کو قرآن رکھو میں قسم کھاتی، ایسا بولتے لو. تمہیں سر کو رکھو، ہاتھ میں پکڑو، قرآن کی قسم ہی کھانے کا نہیں ہے. اچھا نمبر 3 تعویذ سے بچنے کا ہے. اس کے بعد نمبر 4 ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، علم غیب. علم غیب بولے تو کیا کہتے ہو، انسین کہتے ہو. یہ دیوار کے پیچھے کیا ہے تمہیں دکھتا نہیں، ان کو دکھتا بولتے یہ دکھتا ہے. جمیل بھائی بولے اس سے پہلے ایک بار. تو ایسا یہ دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم نہ نہیں دکھتا. اب میں بیٹھ گیا، میں بیٹھ کو اچھا میں دیکھتا ہوں ادھر بہت ساری چیزیں مجھے دکھتی ہیں، تو میں علم غیب کا دعویٰ کرتا ہوں، میں کافر ہو جاؤں. اس لیے کہ علم غیب اللہ کچھ معلوم. تو ایک صاحب کیا کرے گا تھے، ایسا جلوان کو بول کو ٹھکا لے گو تھے، مجھے مکے میں کیا ہوتا معلوم، مدینے میں کیا ہوتا معلوم، میں سب جانتا ہوں. تمہارے گھر میں تمہیں کیا چھپاتے ہیں مجھے معلوم، تمہارے گھر میں کیا کیا ہے مجھے معلوم. تو ایک بار ایسا سب بیٹھے ہیں، مولوی صاحب بیٹھے ہیں، سب بیٹھے مولوی صاحب فوراً چھو بولے. ارے کیا ہوا بھائی؟ بولے تو نہیں وہ مکے میں وہاں ایک کتا آ گیا تھا، میں اسے بھگا لے کو تھا. کہاں کا کتا بھگا گئے تھے نا؟ مکے. اچھا جی. اس کے بعد ایک وہ محلے کے ایک عقل مند خاتون کیا کرے گئے تھے، اچھا بول کو دعوت دیے سب کو، مولوی صاحب کو سب کو دعوت دی. دعوت دے کو گھر میں بلا کو کھانے کو ایک بڑے برتن میں پورا اچھا رائس، گھی رائس یہ وہ بنا کو اندر سالہ چھپا کو رکھ ڈال. چکنا سربی کس میں چھپا ہے؟ رائس میں، اندر خالی رائس ہے. مولوی صاحب بیٹھے انتظار کر لو، کیا بھی چاہے نہیں نا ابھی میں کیسا کھانا. کیا تو انہوں پوچھیں گے تھے کیا شیخ صاحب بیٹھے کھاؤ نا، نہیں نا کیسا سکا رائس کیسا کھانا. کہ تو ڈنڈا لے کو کیجیے تم نا، وہاں ہے سو وہ کتا دکھ گیا، رائس میں اندر ہے سو سالے چکنے سب دکھتے نہیں ہیں، بول کو ان کو اچھا پیٹے. ایسا قصہ سناتے ہیں. صحیح کیا ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے واسطے بولتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ علم غیب کسے معلوم؟ اللہ کو معلوم. کس کے غیب میں کیا ہوتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے، عاملوں کو پوچھتے، اچھا
मुझे नौकरी कब मिलेगी, मेरा तो वो टीवी पर जरा लोग आपको बोलते रहते मेरा भाई कब दुबई को जाएगा, तो 10 दिन में चल रहा बताएं, इसे मालूम है सर का पूरा। तो पूरा बुनिज बोल रहा था मेरा फुला पेशेंट कब अच्छा होगा, एक 3 दिन में अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किसे मालूम है? अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बोलते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गैब की बातें बताते हैं वो अल्लाह बताता है, इसलिए अल्लाह के नबी बताते हैं, वरना अल्लाह के नबी को भी गैब नहीं मालूम। गैब बोले तो क्या बेटा? अनसीन, क्या बोलते उसे? एक है सीन जो देखा जाता है, अनसीन जो नहीं देखा जाता, अनदेखी चीज़ गैब जो तुम्हारे आंखों के सामने नहीं है। खबर में क्या होता उन तो भी देखे गैब हो, खबर में जाको को तुम आको बताए मुझे खबर में डाल डाले बाद ऐसा हुआ नहीं। हदीस में है, हदीस में हमें पढ़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले खबर में डाल डाले बाद फरिश्ते आते हैं, उठाते हैं, बिठाते हैं, पूछते हैं मर रब्बुका व मा दीनुका व मन नबियुका, सारी चीज़ें पूछते हैं। उसके बाद जवाब दिया तो छोड़ डालते हैं, नहीं तो ऐसा रिपेयर करते हैं पूरे लोग सुनते कहते आवाज़ वैसा मार देंगे, एक एक मार मारे तो हूँ ज़मीन में जाकर फिर बाहर आ। तो ये गैब, इसे क्या बोलते हैं? गैब। गैब बोले तो क्या बेटा? अनसीन, जो दिखता नहीं आंखों को, उसका इल्म किसे है? अल्लाह को है। असल हमारे बच्चे समझना, हमारे औरत तकरीर सुन 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 को बूढ़े हो गए, उनको बोलना मुझे असल नहीं। असल ये बच्चे सीख लिए, समझ लिए, ये हमारी दौलत। ये बच्चे अगर सुन लिए, एक बच्चा भी समझ लिया, ये हमारी। तुम लोग अभी सुन सुन को बूढ़े हो गए, तुम लोग बोले अब मैं बोलने क्या है, पूरे बात तुमने मालूम इसलिए नया क्या तो बोले सो मार। तो असल ये बच्चे जो हमारी दौलत हैं, अगर ये समझ जाते हैं तो उससे बढ़कर क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहते हैं कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दि गैब इल्ला अल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए आसमानों वालों और ज़मीनों वालों में से अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता। गैब कौन जानता है? अल्लाह। गैब कौन जानता है? अल्लाह। अल्लाह के अलावा किसी नबी को, किसी रसूल को, किसी फरिश्ते को गैब नहीं मालूम। कोई भी आपको हमने ठकाने नहीं। ज़रा में क्या करते मालूम, ऐसा आपको शुएब साहब को देखते, क्या शुएब तुम्हारे हंक्या में क्या कि लाल लाल दिखता ना, क्या कि तुम्हारा परेशानी आने वाली है, क्या कि इनको मालूम तो सर अब उन्होंने डर जाओ। अच्छा शेख साहब क्या करना है इसके वास्ते? क्या भी करना नहीं, मैं एक वजीफ़ा पढ़ दूँ, वो वजीफ़ा 3 दिन में करा तो तुम्हें अच्छे हो जाएंगे। अच्छा उसके वजह से मैं क्या करना? क्या भी नहीं करना, 3 दिन के वजीफ़ों को 15,000 रुपये 5 into 3 मुझे दे डालो, तुम्हें अच्छे हो जाएंगे। नहीं अच्छा है धंधा, तो ऐसा बोल को ठकाते आमिला, ये जो जादू करते नहीं, रुकिया करते, घर को आएंगे, घर को आकर देखो तुम्हारे घर में क्या की बड़ी बला की सरकत दिखती ना, कैसा मालूम जो तुम ना झूठा धोखेबाज, हाँ इसे मालूम नहीं रंगा, इसके घर का हालत इसे मालूम नहीं रंगा, हमारे घर की बला इसे मालूम नहीं। तो ऐसे बहुत सारे धोखेबाज रहेंगे, इनसे बचना और इस पर अकीदा रखना कि गैब का इल्म किसे है? अल्लाह को। मेरे घर में कब रोज़ी आएगी, मेरे घर में कब बरकत आएगी, मेरे घर में कब शिफा आएगी, कब बीमारी आएगी, इसका इल्म किसे है? अल्लाह को। तो इसी तरह एक और चीज़ जन्नती औरत के बारे में हम लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? सुबह शाम की दुआएं पढ़ते रहो। मदरसे में तुमने पढ़ाते नहीं? अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका पढ़ाते नहीं? ये कंपलसरी तुम्हें पढ़ना घर में। क्या बेटा? तुम्हें घर में कंपलसरी पढ़ना। अब तुम्हें घर से आए ना, कपड़े पहन ले कुछ ना आए, कहीं को पहने बेटा, पैसा चाह जाना नहीं। ये जितना ज़रूरी है उतना दुआ भी ज़रूरी है, उसे इग्नोर करो नहीं।
कंपलसरी दुआ पढ़, घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह, रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। इसलिए कि आज लोग जादू कराते देखते कौन सा तो भी घर हरा भरा है, अच्छा जो चार पैसे कमा ले वहीं उनके पेट में खौल शुरू हो जाता, क्या तो भी करके इसका संसार, इसका जीना हमें बर्बाद कर डालना, इसका कारोबार ठप हो जाना। जादूगरा मिल जाते हैं आजकल, सस्ते जादूगरा करा को उसके माँ बाप के यानी वाइफ और हस्बैंड के बीच में जुदाई डाल को, कारोबार को ये कर डाल को, ऐसा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा कि जादू कराना भी उससे आदमी काफिर हो जाता है, शिरक से भी आदमी काफिर हो जाता है। तो लेकिन जादू में हर शख्स कामयाब नहीं होता, लेकिन जादू से बचना बहुत ज़रूरी है। एक वाक़या इन्होंने लिखा है, अबू दर जुंदब बिन जुनादा रज़ी अल्लाह अन्हु, एक सहाबी अल्लाह के रसूल के कंपेनियन सहाबी, वो सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ज़माने के बाद एक गवर्नर के बंगले में गए। बड़ा बैठा है, पूरे मिनिस्टर बैठे, अमीर साहब सहाबी भी बैठे। वहाँ एक जादूगर आया। जादूगर बोले तो, जादूगर किसे बोलते बेटा? मैजिशियन। जादूगर बोले तो मैजिक कर को बताता। कैसा मैजिक करेगा? मैं बैठे हूँ नहीं, मैं आदमीश ना, मैं अचानक हत्ती बन जाऊंगा, तुम्हें देखेंगे मुझे। अरे मौली साहब बैठे थे ना, अभी हत्ती हो गए ना इन्हों। हाँ अच्छा, हत्ती को रेल का इंजन बना डालेगा। ऐसा एक है मैजिशियन, देखने में ऐसा दिखेगा। कुरान क्या बोलता? वाला युफ्लिहु साहिरु हैथु अता, जादूगर क्या करे तो भी उन्हें कामयाब नहीं होगा। लेकिन आंखों को क्या करते, लोगों के आंखों को बंद कर को एक चीज दूसरी चीज के नमक दिखेगी। तो वो सहाबी जो बैठे हैं, वहाँ एक जादूगर आया। जादूगर आकर बोला, मैं अब क्या करूंगा, एक आदमी को बुला को सर निकाल को फिर जोड़ डालूंगा। क्या करे उन्हें? एक आदमी को बुलाता, ऐसा सर काट डालता, फिर क्या करता, जोड़ डालता, ऐसा बोल को बोलता। लोग सब भी क्या है, हाँ कितना बड़ा जादूगर रंगा, इन्हें कितना बड़ा जादूगर रंगा, इसके पास क्या मैजिक रंगा। तो अबू ज़र जुंदब बिन जुनादा रज़ी अल्लाहु अन्हु, उन्होंने क्या करे, दूसरे दिन बड़ा तलवार छुपा ले को चाहे आपको क्या करेगा। तो अच्छा मौका मिलता क्या देखे, वो जादूगर के सामने जाको अदब से उसका सर ऐसा कर को क्या करे, सर रीच क्या करे, उड़ा डाले, सर जाको वहाँ पड़ा, खाली धड़ लटकता। बोले तू कल तक बोल को था ना, मैं अलग करके जुड़ा डालू, अब जोड़ ले तुझ तेरा सर। बोले क्या? बोले तेरा सर क्या कर, तू जोड़ ले। तो शरीयत का हुक्म क्या है, हद्दुस्साहिर दरबुहु बिस्सैफ। अगर कोई जादूगर है, इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक अमीर है, तो अमीर उसे क्या कर डालेगा, कत्ल कर डालेगा, हर जगह नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इस्लामिक कंट्री में ऐसा करता है कि मैं जादूगर हूँ, जादू करता हूँ, तो जादू करना हराम है, आदमी काफिर हो जाता है। और कोई जादू का दावा करता है तो उसे इस्लामिक कंट्री में क्या कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। जैसे ये सहाबी ने उसको कत्ल कर दिया, और साथ साथ उन्होंने कहा अही नफ्सक, अब तो अपने आप को जिंदा कर ले, अब तो अपने आप को जिंदा कर ले। अच्छा कितने बातें होंगे बेटा, बल्ला की बातें बोल रहा है, मैं याद दे रहा हूँ। वो सीरियल छुड़ गया नहीं, वो 2-3 बातें मिल गई जा कहनी में। उसके बाद और एक चीज़, जन्नती औरत की एक आदत क्या मालूम, चुप के स्टोरियाँ बोलने को नहीं रहते। हमारे घर में हमने क्या अभी काम नहीं, कभी क्या काम, वो घर के किस्से, ये घर के किस्से, कहानियाँ, स्टोरियाँ। जन्नती औरत को इसका सब फुर्सत मिलता नहीं। कुरान में क्या बोलते हैं, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अल्लाह ताला कुरान मजीद में बोलते हैं, ऐ औरतों, ऐ जन्नती औरतों, अपने घरों में रहो,
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ